The first airline was Indigo. Yes. Ladies and gentlemen, fasten your seatbelts for we're ready for takeoff. पार्किंग में जो भैया होते हैं पार्किंग वाले, उन्होंने भी मुझे बोला था कि मैडम आप क्यों नहीं आती हो, आपका तो इंटरव्यू में सिलेक्शन ही नहीं होता है। एम्बुलेंस और ऑपरेशन, क्या बेटर होता है यार? टर्बुलेंस कुछ ही देर का होता है, ओके, बट जब क्या I got it. एक कॉमन ऐसा झूठ जो हर एक स्टूडेंट अपने रिज्यूमे में बोलता है। ओके सो एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है कि एचआर रंगोली नहीं बनाते, नहीं बनाते, एचआर रंगोली बनवाते हैं। करेक्ट। ये प्लीज इसको हाईलाइट करके डालो। मार्क्स और स्किल्स, स्किल्स, MBA डिग्री और एन एक्सपीरियंस पर्सन। एक्सपीरियंस, So how many interviews you have given to? अनलिमिटेड। आई डोंट हैव काउंट। हालांकि कभी कभी किसी चीज़ को मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, बट किसी की लाइफ में उस चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रगल भी होता है। वो चीज़ मेरी लाइफ में वो था। Hi, my name is Rahul. I am from Shikunj, and today we have a guest, Pooja Dubey. Pooja Dubey ji is having a very good background from the airlines industry, and now she is doing great in the human resource as well. जानते हैं कि ये जर्नी कैसी थी, क्या एक्साइटमेंट था इसके अंदर, क्या पैशन था इनका, और कैसे इन्होंने अपने करियर में स्विच किया. So, hi Pooja ji. Hi Rahul, how are you? I'm absolutely fine. How are you doing? I'm perfectly okay, thank you. So welcome to the Shikunj podcast, Thank you. and this is the first episode we are shooting, and you are the first guest of us. Yes. Perfect. So we got to know about your journey. You have done a lot of work in airlines industry. आपने brands के साथ काम किया है, and from a normal background to the airlines, एक attendant की तौर पे काम करना, passengers को handle करना, and now you are handling the people, Correct. right? बहुत ही different है, बहुत ज़्यादा different है. Yes. So I just want to know how you started your journey. See, I cannot tell you in 1 hour or 2 hours. Definitely, I hope you understand. But then, it's a very beautiful. I have struggled a lot, but then that struggle enhance and make my personality like anything. Okay. That's why I'm here, I guess, and that's why you call me on your podcast. So yeah, journey was very beautiful. See, I have started my career in HR only in 2013 and 14, I guess. I was working as an HR journalist because at that time I was looking for myself that I have to become something in aviation. So actually that's Kida, put from my mother, like, कुछ तो यूनिक करना है तुमको. मैंने बोला ठीक है, okay. And at that time, like in 2012 and 11, there was no communication skills. Students में कुछ भी नहीं होता था. They are not able to speak properly because if it is an English medium school, then two teachers are speaking in Hindi. So that is a very bad, and all the students that they are not able to speak properly whenever they are giving interviews, whenever they are giving whatever it is. So I started taking classes like English classes and all that. Okay. So over there, I met with one person. Her name was Ankisha. And later on, I got to know that she's my relative also. And she was a pilot somewhere. Oh, And then she was a pilot. Yes. तो वो So, पहले जहाज उड़ाती थी और अब पैसे कमा रही हैं कोचिंग चला के. no, so in between, her license got expired. Oh. So at that particular time, she was just given training for the personality development. So Right. at that particular time, I met her. And मैंने घर आके मम्मी को बताया कि मम्मा वहाँ पे एक लेडी है जो पायलट है. तो उन्हें बोला देखो तुम्हें भी कुछ करना चाहिए, यूनिक है तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा है, मतलब कुछ ऐसा हटके करो जो सबसे अलग हो. ना वाज लाइक ओके. वो मेरे मन में ऐसा घर कर गया कि मैंने उसके लिए बहुत स्ट्रगल किया. हालांकि कभी कभी किसी चीज़ को मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, बट किसी की लाइफ में उस चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रगल भी होता है. वो चीज़ मेरी लाइफ में वो था. सो मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया, बट ड्यू टू सम मेडिकल रीजंस मुझे वो चीज़ के लिए पॉज लिया कि ठीक है अभी नहीं. And I had struggled for this career for 7 years. And that was from 21 to 27. When I was 21 years old. And I completed 27 and I got selected in Indigo. Oh, Yes. the first airline was Indigo. Yes. I got selected as a ground staff. So, like I have given this much interview कि जो parking में जो भैया होते हैं, parking वाले,
उन्होंने भी मुझे बोला था कि मैडम आप क्यों ही आती हो, आपका तो इंटरव्यू में सिलेक्शन ही नहीं होता है. So how many interviews you have given to Unlimited. I don't have counts. Okay. Yes. But वो जो स्पिरिट थी ना, मुझे करना है. वो एक मेरा जो एक अंदर से वो था कि नहीं, मैं कुछ तो बनूंगी यहाँ पर. तो वो मुझे, और जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, मतलब आई वॉज इन इंडिगो, but still there was the back of the mind that I had to become crew. I'm not flying yet. That was ground staff, right? So there was an interview in Jet Airways, and I asked my assistant manager, the duty manager, that I want to go for this interview. She also said that. अगर वो broadcast देख रही होंगी तो she could remind that you know, she told me that क्या करेगी जाके, मेरा तो इंटरव्यू में सिलेक्शन ही नहीं होता है. Okay. एंड आई वाज लाइक अच्छा सीरियसली. और उसी दिन मेरा सिलेक्शन हुआ है. What's her name? दीपिका. So दीपिका जी, इस समय पर अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि वी हैव पूजा दुबे विद अस, जिनको किसी समय में शायद आपने कहा था कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बट नाउ शी हैज बीन सिलेक्टेड ऑलरेडी इन इंडिगो, एंड इवन नाउ शी इज अ वेरी गुड HR इन द इंडस्ट्री. Yes. So she just casually said that, you know, what will you do? There is no scope that you are giving so many interviews, you're not getting selected. And I was like, basically, airlines have a criteria that if you're a fresher, then you can apply till 28th. And if you're an experienced, whether your license has been expired, you can apply till 35 years of age. So I had applied, and I was like, ठीक है, मतलब उन्होंने बोला कि मॉर्निंग शिफ्ट है आपकी, आप ब्रेक शिफ्ट ले लो. और उस दिन आई हैव गिवन लाइक, एंड आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग लाइक 3:30, एंड मैंने अपनी शिफ्ट करी, इंटरव्यू दिया, 4 राउंड्स मेरे क्लियर हो गए. एंड इवनिंग में जो मेरी खुशी थी मैं आपको बता नहीं सकती कि आई वॉज अबाउट टू फ्लाई. एंड वो धीरे जर्नी वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई आफ्टर इंडिगो, दैट आई बिकम अ क्रू, एंड दैट वाज इनटू द ब्रांड एम्बेसडर जेट एयरवेज. So I got selected there, and yeah, journey started. And again, the moment I got my first flight, that was into Indore. तो वो भी मेरे लिए एक बहुत ही मतलब अचीवमेंट था कि मेरी इंदौर में ही सबसे पहली फ्लाइट है, एंड मैंने अपनी मम्मा को नहीं बताया. एंड देयर आर सो मेनी इंसिडेंट व्हिच आई हैव नेवर टोल्ड माय मदर. दैट वन इंसिडेंट दैट I like, there was a birthday on my, like 9th October is my mother's birthday. So I was just thinking, यार, sitting in Mumbai, and I was just thinking, यार, काश आज फ्लाइट मम्मी के पास होती. And suddenly, within 5 minutes, I got a message that you have to operate in Mumbai, Indore, Mumbai flight. Oh, nice. And मैंने अपनी मदर को नहीं बताया. And वो जो उस टाइम पे everyone was not like कि फ़ोन लेके हम लोग घूमते रहते थे. उस टाइम पे इतना क्रेज नहीं था फ़ोन का. I'm talking about 2018 बात में. तो वो जो कैप्चर मैंने जो मम्मी के जो एक्सप्रेशन है ना, वो जो मैं कैप्चर किए हैं, वो अभी तक बसे हुए हैं मेरे दिल में. जो उन्होंने मेरे को अपनी यूनिफॉर्म में देखा था कि यार मेरी बेटी वहाँ से आई है, वो मतलब अभी भी मुझे गूज़बम्स आते हैं वो सिनारियो याद करके कि मैंने उनको जो सरप्राइज दिया है उनके बर्थडे पे. दैट वाज अमेजिंग. और वो कैप्चर जो मैंने मोमेंट किया है वो मैं कभी भूल नहीं सकती. आप उसको कभी फ़ोन में भी कैप्चर नहीं कर सकते. इतना अमेजिंग मोमेंट था वो मेरे लिए. एंड या जर्नी हैज स्टार्टेड, बट कोविड आ गया. लेआउट्स हो गए, फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी. आई थॉट दैट वंस सिचुएशन विल अंडर कंट्रोल तब मैं ज्वाइन कर लूँगी, बट नहीं हो पाया वो बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस ऑल्सो. सो मैंने फिर HR अगेन कंटिन्यू किया. मैंने कहा ठीक है, बिकॉज आई थॉट अगर आपको लाइफ टाइम चीज़ों को कंटिन्यू करना है, so why not HR? Because I've started my career in HR only. So again, I have started pursuing HR only. So I got selected in good companies, and I'm doing great. So yeah, I'm here again. Nice, perfect. That's a great achievement, I think. And so there are 2 questions I have. Yeah. Pooja. Question number 1. One tip, if you can give to the people, to the girls who wanted to become an air hostess. Yeah. So there are so many students who asked me because they have seen my profile on Instagram and LinkedIn. So the people who are working still in the HR, so they used to ask me, ma'am, what are the skills which we can carry to become a crew? So I always say that communication is the best key. Okay. Like if you have a good communication and the good personality, and they have the criteria that you have to come under the BMI. So
definitely you can achieve that particular goal. Communication is the best key. And there are some certain, pointers like your height should be like according to their parameters and your BMI. So if you're fit to fly, then definitely. So communication, I would say that you should know best and the best way. Okay. Because how will you? Because you know what happened once you're on board, you are representing the company. You're representing the brand. You're on board and you're facing passengers. So they're not thinking ki I'm Pooja. They're thinking she's the Jet Airways. She's SpiceJet. She's Indigo. So that's why they're looking for a good communication. Whatever the passengers they have, you have to communicate in a proper way. And I don't say that communication is only just English. It's a way how you're presenting yourself, how you're communicating your thought to in front of your passenger. So that's how it is. Nice, well explained. Perfect. Thank you. सो एक और सवाल यहाँ पर एक और आता है क्योंकि ये उड़ान भरी जर्नी ना बड़ी मज़ेदार होती है, मतलब ये मज़ा आता है, मतलब आई स्टिल रिमेंबर माय फर्स्ट फ्लाइट। और मुझे से कई सारे लोग हैं जो सिर्फ ये देखने जाते थे कि एयर होस्टेसेस करते ही क्या है अंदर। हमने सुना था कि वो लोग पानी पिलाते हैं, फ्री चॉकलेट्स बांटते हैं। मैंने बादशाह मूवी में देखा था बचपन में कि फ्री चॉकलेट्स मिलती हैं हमें, बट वो सपने मेरे चूर हो गए जब मैं पहली बार दिल्ली के लिए उड़ान भर रहा था। मुझे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होता है, हमको अच्छा पानी फ्री मिलता है। ओके कौन सी फ्लाइट थी आपकी? इंडिगो। So I hope you understand that Indigo is a low-cost airline, so they do not provide, right? I know. Yeah. So that's how it is. They don't provide even a single penny if you're not paying anything apart from the water. True. That's why there's Indigo. इसीलिए चल रहा है, इसीलिए चल रहा है। तो इस पे एक क्वेश्चन वो पूछूंगा मैं। Okay, so now next one another question on this same. You failed multiple times in interview when you were giving the interview for the crew, right? What was the major reason you thought? कुछ तो ऐसे कारण रहे होंगे जब आपने multiple interviews को आप fail हुए। What was the major reason? I would say that maybe communication, that I was not up to the mark, to be very honest. But yes, the moment I got selected in Indigo first time, Nisha ma'am know अगर वो देख रही होंगी podcast, so she only told me that, Pooja, now you're very perfect in the communication. That's why you got selected. Okay. So वो जो एक स्पिरिट था मेरे अंदर कि नहीं मैं किस चीज़ में लैक कर रही हूँ, मुझे वो चीज़ परफेक्ट करनी है और मैं उस चीज़ में लगी रही एक के बाद एक, तो वो फिर मैंने कहीं ना कहीं अचीव कर लिया उसको। Okay, so now the major questions are coming. Okay. Yes. The life of an air hostess always look glamorous to the people. Yes. But अंदर की reality क्या होती है? To be very honest, on a uniform glamorous होता है। और जो आपकी जॉब होती है वो ग्राउंडेड रियलिटी दिखाती है आपको। Okay. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ ग्लैमरस है। The moment you will walk at the airport, the passenger will see you in the uniform. Definitely, that's a pride for yourself. That, and that's one more thing. Whatever the time it is, if it's a midnight 30, like so, basically we call red eye flight, right? So if it is a after 12:30 or so if it is a 1:30, 2:30, whatever the timing is, the moment I'll wear my uniform, I feel like that I have to go on the flight. That motivations, like the moment I'll wear the uniform, that motivation brings with the uniform that I have to fly, whether I slept properly or not. So वो जो एक मज़ा था उस यूनिफॉर्म को पहनने में वो अलग था, सीरियसली। एंड ये मैं सिर्फ पॉडकास्ट के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं एक्चुअली बोल रही हूँ कि मुझे बहुत मज़ा आता था उस पर्टिकुलर जर्नी को एंजॉय करने में, एंड मैंने वो हर मोमेंट एंजॉय किया है, सीरियसली। सो ग्लैमरस सीरियसली यूनिफॉर्म तो दिखती है, बट एक जो ग्राउंडेड रियलिटी है कि आपको पैसेंजर चिल्ला रहा है, फ्लाइट डिले हो गई है, बिकॉज एवरी मोमेंट इज़ लाइक हम सोचते हैं कि यार ठीक है फ्लाइट है तो क्या हो गया, बट जब पैसेंजर्स की डांट पड़ती है तो हम ही लोग को फेस करना होता है, राइट? आपको सिर्फ वो यूनिफॉर्म और आपकी जो एक ऊपर से जो पर्सनालिटी है वो ही नहीं शो होती, बिकॉज ऑन बोर्ड होने के लिए वी हैव टू पास फ्यू एग्जाम्स विच इज़ रिलेटेड टू FSAC, DGCA, फर्स्ट एड, सिक्योरिटी, हॉस्पिटैलिटी. We have to give in these exams. In the airlines industry, is there any examination they have to judge the patient's level of the person? No, not like that.
Patience level, in what sense? I would say. Patience level, because What sense? in what sense? In the sense, suppose what happened maximum time. Hmm. एक पैसेंजर है, उसको समय पर पानी नहीं पहुंचाया, उसने डांट दिया, उसने चिल्ला दिया, कैसी सर्विस है, आई एम वेटिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, यू आर इग्नोरिंग मी, राइट? वहां पर आपको अपने एक्सप्रेशंस को काम रखना होता है. थैंक यू सो मच सर, आई एम सो सॉरी फॉर दिस. एंड so is there any examination airline industry is taking to change just the patience? No, they won't teach you how to be calm yourself, but then definitely there are some play जो होता है ना, हम लोग को करवाते हैं कि एक incident create करते हैं. Okay. And the faculty will sit on the passenger seat, and they will just teach you, that passenger may teach you, may behave you in this way. So how will you tackle this? So there are some job play role they used to act in the training period. So but they won't ask you to आपको इतना पेशेंस रखना है, इतना नहीं, वो इंटरनली आता है, बिकॉज यू आर इन दी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. सो आपको पेशेंस लेवल खोना ही नहीं है किसी भी एंगल से. ठीक है, आपको पैसेंजर सॉरी मतलब मांग रहा है आपसे, तो आप 3 बार सॉरी बोलो, उसके बाद हट जाओ, आप सीनियर्स को बुला लो. बिकॉज आप पैसेंजर्स क्या होते हैं ना, बहुत इरिटेटिंग होते हैं यार कभी कभी. सो ठीक है, आपसे जितना बन पा रहा आप करो, अदरवाइज यू हैव स्टाफ, आप उनको बुला दें. तो पेशेंस लेवल खोने का, पेशेंस लेवल टीच तो नहीं करते वो अगर वो बाय डिफॉल्ट है कि अगर हम जा रहे हैं एज ए क्रू बनने, तो हमारे इंटरनली वो आ ही जाता है कि नहीं, मुझे पता है कि मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जा रही हूँ, तो मुझे ये चीज़ आनी ही चाहिए. तो दैट्स हाउ इट इज. Okay. They won't teach you, Got Yeah. got it. Perfect. So now you were in airlines, now you are in the HR. Yes. You have seen the turbulence, you also have seen the pressure of appraiser. Yeah. Turbulence or appraiser? क्या better होता है यार? Okay. So it's a very nice question, but then turbulence कुछ ही देर का होता है. Okay. But जब क्या? I got it. पर अप्रेजल का जो एंजाइटी होता है, पूरे साल झेलना होता है. Okay, I got it. Perfect then. तो हम कह सकते हैं appraisal time is more difficult as compared to turbulence. Obviously, क्योंकि टर्बुलेंस अगर हो रहा है तो या तो आप सीधा ऊपर ही जाएंगे या तो बच जाएंगे. पर appraisal अप्रेजल में आपको तो साल भर उसी टर्बुलेंस से बिताना है. हिलना है. और क्योंकि किसी का भी अप्रेजल 100% सेटिस्फाइड नहीं होता, बिकॉज व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग कंपनी वुड गिव यू लाइक 90%. बट तो डेफिनेटली, and if you have an option, definitely you will switch the organization, otherwise you will survive that appraisal entire year. So Right. Now you handle passengers yes. in airlines, different zone, different areas, different faces, different religions. Correct. So you handled passengers and now you are handling the people as an HR. What is the most difficult task if we compare both? I don't think so. Everything is difficult. I would say that whether I'm playing a role as a cabin crew, whether I'm playing a role as a HR, so I would say that people have to be empathize with the passenger or with the employee also, because if there's a passenger, then passenger can ask with a crew. And if I'm an HR and if I'm handling employee, then employee has only one-way communication, which is HR. They cannot go directly to the directors. So I would say that nothing is difficult. You need to know how to handle, and if you have an experience, and if you have the spirit to perform your duty with your role, so you can handle it without any difficulties. Okay. So imagine करते हैं कि आज अगर पूजा ग्रेजुएशन कर रही है, आज अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी स्किल होती जो आप पहले नहीं ले पाई और आज आपको लेने की इच्छा है? मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन कोई नहीं सिखाता किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में, और ऐसा नहीं कि सारे बच्चों को कम्युनिकेशंस आता है, बिकॉज देर आर सो मेनी स्टूडेंट हु कम फ्रॉम रीवा, सतना. इफ आई टॉक अबाउट इंदौर community, so people are coming from Devas, Ujjain, they are not good in communication. So अगर मैं वहाँ से उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करती, तो मैं सबसे पहले अपने अपार्ट फ्रॉम मार्क्स, अपार्ट फ्रॉम स्कोर, मैं अपनी स्किल्स पे काम करती, विच शुड बी द अडेप्टेबिलिटी
communication and what are the upgradation in the market. So that because मुझे स्कोर तक ही सीमित नहीं रहना है, मुझे आगे इंटरव्यूज भी देने हैं, तो इंटरव्यूज में क्या चीज़ें काम आती हैं मैं उस पर काम करती हूँ. Right, perfect. Now you have seen a lot of resume because you are an HR. एक HR अपने daily basis पे, कोई भी HR क्यों ना हो, if today I am in HR, तो एक HR अपने daily basis पे कई सारे resumes को देखता है, कई सारे resumes को select भी करता है, कई सारे resume को reject भी करता है. एक common चीज जिसमें एक common ऐसा झूठ जो हर एक student अपने resume में बोलता है. Okay, so पहली बात तो वो रिज्यूम उसने बनाया वही बड़ा झूठ होता है. क्योंकि वो रिज्यूम अगर हम फ्रेशर्स की बात करें तो वो रिज्यूम डेफिनेटली उसने तो नहीं बनाया होता है. वो या तो कहीं साइबर कैफे से बनवा के आता है या तो कोई अपने भाई बहन फ्रेंड से बनवा के आते हैं, और वो क्या लिख देते हैं सीवी में आप उसको पढ़ते भी नहीं और आप इंटरव्यू में पहुंच जाते हो. तो पहला तो सबसे बड़ा झूठ वही है. दूसरा अगर मैं बात करूँ तो लोग लिखते हैं कि आई हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, और जब इंटरव्यू में जाते हैं तो रिजेक्ट हो जाते हैं. तो डो नॉट राइट कि मुझे बहुत अच्छी कम्युनिकेशन आती है, दैट आई एम गुड इन कम्युनिकेशन. डोंट राइट इट बिकॉज आई हैव सीन पीपल डू राइट बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग टू राइट इन द रेज्यूमे एट दैट पर्टिकुलर टाइम. सो वो चीज़ होती है. दूसरा उनको ये लगता है कि मैंने मतलब हॉबीज़ में वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी डालते हैं कि उनको लगता है इससे मेरा शायद सिलेक्शन की मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है स्पोर्ट्स में, इन चीज़ों में, तो शायद मेरा सिलेक्शन इन चीज़ों में, मतलब वो समझे कि बच्चा बहुत एक्टिव है तो हो सकता है ऐसे मेरा सिलेक्शन. बट वो ऐसा पॉसिबल नहीं है. मैं हमेशा ये बोलूँगी कि आपका रिज्यूम पहुँचने से पहले आपकी ब्रांड पहुँचनी चाहिए. तो बिल्ड योर ब्रांड फर्स्ट बिफोर बिल्ड योर रिज्यूमे, आई वुड से. So, career switch किया यार पूजा तुमने, that's a very big thing. Yes. So wherever if anyone is switching the career, the most difficult part is the fear. Yes. What was the one thing you had in your mind when you were switching the career? Comfortability. Because I was really comfortable when I was traveling, and I was enjoying my life, enjoying my journey, because every day I have to travel here and there. Because किसी को रिपोर्ट नहीं करना, कोई रिपोर्ट नहीं बनाना, जस्ट यूनिफॉर्म पहनो, फ्लाइट पे जाओ, वापस आओ एंड सो जाओ. अगेन उठो, कोई फ्लाइट है ठीक है, उठो जाओ वापस आ जाओ. जहाँ भी लेवर्स होते थे एंजॉय करो. सो फिर मैंने जब HR में स्विच किया, व्हेन आई वाज लाइक आई हैव टू सिट इन अ पर्टिकुलर कैबिन, और वो भी ऐसा नहीं कि आज जाना है कल नहीं जाना है, एवरी वीक जाना है, बिकॉज हमारी फ्लाइट एवरी वीक तो होती नहीं थी. तो इस वजह से सो करियर स्विच करने में ऐसा कोई फियर तो नहीं था, बिकॉज आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एंड capable enough that I can manage, because I have already done my HR things earlier. So I was very confident enough that I can do that. That's why I have chosen both the careers. So कोई भी इधर उधर स्विच होता है तो मैं उस पर जंप कर सकती हूँ. तो I was very confident while switching the career. But yes, कंफर्टेबिलिटी में अटक गया था दिल कि यार वहाँ पे फ्लाइंग करना है और यहाँ पर एक ही कैबिन में बैठ के एम्प्लॉयज को देखना है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. सो दैट इज द ओनली थिंग. So can say that now you are enjoying this journey as an HR? Yes, right now I have built up my mind in this way that I cannot go back in that particular life. My friends who are still flying with Air India, with Qatar, with Jeddah, and like there are so many airlines. They are flying with Lufthansa and Emirates. So they are saying come back, and I was like no, अब हो गया, अब नहीं है. Because I know once I'll go there, फिर any कोई भी नेचुरल डिजास्टर अगर आता है तो मुझे वापस से ग्राउंड पे आना पड़ेगा. अगर मैं ग्राउंड पे आ गई मुझे अगेन स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, which is not possible. So that is the only reason I choose an HR only, that I'll pursue HR only. So You are enjoying the life now. I'm enjoying HR because I communicate with my employer in this way. Okay, because I'm not like a person जो cabin में बैठ के एकदम रूल चलाने वाली लड़की, ऐसी नहीं हूँ मैं. I really want to build connection with my employees. So whenever I'm giving interview anywhere, so this is the only very plus point that I generally make my bond with my employer, because I really don't feel कि मैं टिपिकल HR हूँ और मुझे एक कैबिन में बैठना है और मुझे वो पॉलिसी बनानी है और मैं चाहती हूँ कि वो पॉलिसी सब फॉलो करें. नहीं,
मैं अब चाहती हूँ कि मैं ऐसा बॉन्ड बनाऊँ अपने एम्प्लॉय के साथ में कि अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है वो मेरे से इजीली बोल सके आने के बाद, बिकॉज आई एम द ब्रिज ऑफ द कंपनी एंड एम्प्लॉय. सो आई वांट टू मेक दैट बॉन्ड विथ एवरीवन, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, कि वो मुझसे आके बात कर सके. सो मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, एंड मेरा एक जो नेचर है दैट आई एम वेरी जॉली नेचर, सो पीपल डू कनेक्ट विथ मी, सो इट हेल्प्स मी अ लॉट. हमने ऐसा सुना है कि एचआर रंगोली बनाते हैं. ओके. सो हमने ऐसा सुना है कि एचआर रंगोली बनाते हैं. हम्म. राइट. बहुत सारी जगह बनाते हैं, हम्म. बनाते भी होंगे, हो सकता है, हम्म. पता नहीं है. हम्म. सो हमने ऐसा सुना है कि एचआर रंगोली बनाते हैं. हम्म. एचआर क्या क्या करते हैं? ओके, सो मुझे 8 years हो गए हैं एचआर में. मैंने आज तक रंगोली नहीं बनाई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अपार्ट फ्रॉम माई होम, मैंने उसके अलावा कंपनी में कभी रंगोली नहीं बनाई है. मैंने एम्प्लॉय से बनवाई ज़रूर है, सीरियसली. तो अगर बात करें जॉब रोल की, अगर आप टिपिकली एचआर रोल पूछना चाहते हैं, so earlier I have started my career as in a recruitment also, but as of now I'm in the operation. So I'm handling onboarding from scratch to end, exit from scratch to end, and payroll, definitely. I'm working on the entire payroll, and employee engagement. I am into the in my company I have built a very good connection with all the colleges like CDGI, SD Vansals, and Sage University, and so many Shikuns. Thank you for the name, Chloe. Yes. So I've built my connection in this way that I can grow up myself also, that people started knowing me that, okay, who's Pooja Dubey? And that's how I have, added one point. No, I have to build a reputation that, okay, there's a girl who's working somewhere. Like, Okay. वो एक Personal brand, identity. हाँ, yeah. Right. So that's why I said to every student, build your brand first. Okay. Yeah. तो एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है कि एचआर रंगोली नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं. एचआर रंगोली बनवाते हैं. करेक्ट. ये प्लीज इसको हाईलाइट करके डालो ताकि मेरे सारे एचआर फ्रेंड्स खुश हो जाएं. Whenever we talk about the hiring, screening in is one of the important process, right? Hmm. And screening over the LinkedIn is very important. As a recruiter, as an HR, what are the tips you want to give to the students to be active over the LinkedIn? Okay. So I would say that students need to post at least twice and thrice in a week, Okay. and they should learn how LinkedIn grow. They learn how Instagram grow, but they don't learn how LinkedIn grow. So how you can build your profile on LinkedIn. So I would say that post twice or thrice in a week, so their profile can start building. Like, okay, there's some person, whether it's a student or whatever it is, start posting on your profile. So yeah. Now we have a rapid fire. I'm going to ask some question और आपको 1 से 2 सेकंड में उसका आंसर देना है. रुकना नहीं है. Okay. No cheating. Cool. Okay? कोई कट शॉट्स नहीं होंगे. Marks or skills? Skills. MBA degree or an experienced person? Experience. Communication या confidence? Communication. Resume या LinkedIn profile? LinkedIn profile. Perfect then. So now this is all about from the Shikun side. We would be very happy if you can give some insights to the students who connected with us, and 2-3 casual questions related to the airlines industry. जिसके बाद हम इसको wrap up करेंगे. Okay. Right. One, the most important question. If anyone, any girl want to become an air hostess, apart from the communication skill, if the girl is in 12th standard, आज से उसको क्या बिल्डअप करना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल के अलावा, जिससे वो अगले कुछ सालों में एक एयर होस्टेस बन पाए? ओके. मैं चाहती हूँ कि जितनी भी लड़कियों का ये सपना है कि उन्हें एयर होस्टेस बनना है, मैं दिल से दुआ करूँगी कि वो सारी लड़कियाँ एयर होस्टेस बन जाएं. बिकॉज ये एक ऐसा ड्रीम इंसान अपने मन में कैरी करता है कि अगर वो पूरा नहीं होता तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एंटायर लाइफ आपको लगता है कि यार मैं ये चीज़ नहीं कर पाई, मुझे बनना था. बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स को देखा है जो बोलते यार मुझे भी बनना था, यार तू बन गई, अच्छा हुआ.
तो अगर आपको बनना है एंड इफ यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, सो आजकल तो बहुत इजीली हो गया है, एवरीवन इज ऑन इंटरनेट. सो हर एयरलाइंस का एक करियर पेज होता है, आप वहाँ जाइए. और देयर आर सो मेनी पेजेस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो जो जॉब्स की अपडेटेड देते हैं उस पर्टिकुलर पेज पे. तो आप जाइए. इंदौर में भी होते हैं इंटरव्यूज़. इंदौर में इंडिगो के इंटरव्यूज़ हर महीने होते हैं. आपको जाना है, आप जाइए. इंडिगो की पेज पे आप देख सकते हैं क्या डेट है, क्या लोकेशन है, आप जा सकते हैं उस पर और अपना इंटरव्यू दीजिए. एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आई गेस 10वीं 15वीं बार तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, बिकॉज आप इतना एक्सपीरियंस हो जाते हैं इंटरव्यू देने के बाद कि डेफिनेटली. एंड उनका एक क्राइटेरिया होता है, अगर आप फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट नहीं हुए तो आप दूसरा सेकेंड राउंड में आप इंटरव्यू दे सकते हैं, मतलब दूसरे मंथ में भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं. लेकिन अगर आपने 4 राउंड्स क्लियर कर लिए तो आप 6 मंथ तक एलिजिबल नहीं होते हैं. सो वो उनका क्राइटेरिया ऐसा रहता है. तो और अगर आपको लगता है कि यार ये वाला HR वहाँ नहीं आएगा, जैसे मैंने इंदौर में इंटरव्यू दिया और आपको मुंबई में इंटरव्यू देना है, तो आप 1 मंथ के अंदर भी जाके इंटरव्यू दे सकते हैं. वो 6 मंथ का क्राइटेरिया पे वहाँ पे एलिजिबल नहीं होता है इफ़ यू वांट टू गो. सो इंटरव्यूज़ दो, क्योंकि 12th के बाद मुझे लगता है कि हाई पर्सनालिटी एक ऐसी चीज़ होती है जो आप बिल्ड करके अपना इंटरव्यू दे सकते हो. बिकॉज आप फ्लाइट पर जाते हैं, ऑनलाइन देखते हैं एयर होस्टेस कैसी रहती हैं, नीटली टाइट हेयर, परफेक्ट अटायर, यूनिफॉर्म एंड गुड मेकअप. सो अगर नहीं आता है तो कम टू मी, आई विल टीच यू हाउ टू डू. बट सो बस एक ये छोटी मोटी रिक्वायरमेंट होती है, उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है. तो आप दीजिए इंटरव्यू, सिलेक्ट हुई है, नहीं हो पा रहे मेरे पास आ जाइए. Done. Perfect. So we are seeing that people are seeing layoff का जनरेशन चल रहा है, layoff का टाइम चल रहा है. कई सारे लोगों ने अपने एक AWS ने रिसेंटली layoff अनाउंस करा है, TCS ने इस बारे में बात करी है. क्या मार्केट में जॉब नहीं है या एक्चुअली अच्छे कैंडिडेट्स की भी दिक्कत है? ऐसा नहीं है कि मार्केट में जॉब नहीं है और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं हैं हमारे पास में या लोग मतलब जॉब सर्च नहीं कर पा रहे. मुझे ऐसा लगता है कि सही जगह पे सही लोग नहीं जा पा रहे हैं. जहाँ पे पर्टिकुलर वैकेंसी है, जैसे मान लो कहीं एक एंगुलर डेवलपर की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्रूटर को फाइंड आउट करना आना चाहिए कि ये बंदा मेरी पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए फिट है. तो ऐसा नहीं है जॉब नहीं है, जॉब बहुत है, लेकिन आपको राइट फिट और राइट सर्च आना चाहिए. वो आप सीख सकते हैं, यूट्यूब पे सीख सकते हैं, आप गूगल पे जाके देख सकते हैं. तो आई वुड से जॉब्स भी हैं, लोग भी हैं, जनता बहुत है हमारे पास में. जाइए आप, राइट सर्च करिए, आपको जॉब मिलेगी. ऐसा नहीं है कि कोई जॉब लेस है. हाँ, सही जगह नहीं होगा, आपको सही पाथ पता होना चाहिए कि कहाँ पे मैं जा सकता हूँ. आपको खुद को एनालाइज करना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो. लोग 12th के बाद सोचते हैं यार BD की जॉब मिल रही है, कर लेता हूँ बिकॉज ऑफ मनी. नहीं, आपको पहले खुद एनालाइज करना है कि आप क्या करना चाहते हो. आप एक बार, लड़कियों का भी यही होता है, 12th के बाद कोई जॉब नहीं मिली, ठीक है रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर लेते हैं, एडमिन की जॉब कर लेते हैं. बट लेटर ऑन उनको रियलाइज होता है कि नहीं, मैंने तो ये चीज़ करी थी तो मुझे इस प्रोफाइल में जाना चाहिए. फिर वो उनके पास समय खत्म हो जाता है. तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है. So on a formal note, we are really thanks to you माय to प्लेजर. be here in Sequence Talk. और मुझे लगता है कि the people who connected with us will be happy to see you over the So- screen. And हम दुआ करते हैं कि आप HR के इंडस्ट्री में और आगे बढ़ें और आगे जाएं. और हम समय समय पर आपको याद करते रहेंगे क्योंकि आपके इनसाइट्स की हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी. So thank you so much for coming. Thank you, Rahul. Thank you. Yes.